નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ અફેર્સમાં હું જયેશ સોની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ચોમાસા બાદ રોગચાળાની સંભાવનાને લઈને એસએમસીની કામગીરીની। એસએમસી દ્વારા આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા દરેક ચોમાસા દરમિયાન આરોગ્યની જે ચકાસણીની કામગીરી સાથે જ જ્યાં આગળ ગંદકી હોય, જ્યાં આગળ મચ્છરના બ્રીડિંગ હોય અને એ પ્રકારની જે પણ જગ્યાઓ હોય ત્યાં આગળ જઈને તપાસ કરી અને ત્યાં આગળ દવાઓનો છંટકાવ કરી જરૂરત જણાય તો જવાબદારો વિરુદ્ધ દંડનીય કાર્યવાહી કરવાની કામગીરી એસએમસી દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે। પરંતુ તેમ છતાં પણ ઘણી બધી જગ્યાઓ ઉપર જે લાપરવાહી કહી શકાય એવી ઘટનાઓ સામે આવી છે। આ જ વિષય ઉપર એક વિશેષ અહેવાલ જોઈ લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે એસએમસી સમિતિના જે આરોગ્ય વિભાગના સભ્ય છે એમની સાથે વાત કરીશું। વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટી ચામુંડાનગરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ખરાબ પાણી આવતું હોવાથી 100 લોકોને ઝાડા ઉલટી, તાવ વગેરે બીમારી થઈ ગઈ હોવાનું પ્રમુખ ચેતનભાઈએ જણાવ્યું હતું। દરેક ઘરમાં સરેરાશ 1-2 વ્યક્તિને આવી બીમારી મળી છે। વારંવાર રજૂઆત છતાં તંત્રએ ગંભીરતા દાખવી નથી। મોટાભાગના રહીશોએ નજીકના ખાનગી દવાખાનામાં સારવાર લીધી છે। રજૂઆતના અંતે ગુરુવારે આરોગ્ય વિભાગની વાન આવી હતી અને લોકોને દવા આપી હતી। ચામુંડાનગરના રહીશોમાં ઝાડા ઉલટીની ફરિયાદ મામલે સ્થળ તપાસ માટે અલગ અલગ ટીમ મોકલાઈ હતી। દરમિયાન 450 મકાનોનો સર્વે કરી 1900થી વધુ લોકોની આરોગ્યલક્ષી તપાસ કરાઈ છે। જોકે એકમાં પણ ઝાડા ઉલટીના લક્ષણ મળ્યા નથી। ચામુંડાનગરની સોસાયટીમાં પાણીનો બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે। આજે 7-8 દિવસથી અમે જોઈ રહ્યા છીએ ઝાડા ઉલટીના બહુ જ કેસ વધી રહ્યા છે। પાણી બહુ ખરાબ આવે છે, તો એના માટે હું આ દવા, જો તમે જોઈ રહ્યા છો, દવા અત્યારે બાટી રહ્યા છે, સરકારમાંથી આવી રહી છે, તો છોકરાઓને બહુ ઝાડા ઉલટી છે, તો એની માટે સેવા કરી શકે એવી હું માન્યતા રાખું છું। તો બીજી બાજુ સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલા મારુતિ ઇન્ડસ્ટ્રીયલની બાજુમાં આવેલા નાગસેન નગર ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે। મહાનગરપાલિકા ભયંકર રોગચાળો થાય એવી પૂરી તૈયારી કરી લીધી હોય એમ ગંદકીના સામ્રાજ્ય વચ્ચે મચ્છરના બ્રીડિંગ ચોખ્ખું દેખાઈ રહ્યું છે અને સફાઈના અભાવે અહીંયા રહેતા લોકો ભયંકર રોગચાળોમાં સપડાય એવી પૂરી શક્યતા દેખાઈ રહી છે। છતાં આરોગ્ય તંત્રના કોઈ અધિકારીનું પેટનું પાણી હલતું નથી, જેથી સામાન્ય વ્યક્તિઓને આ ગંદકીનો હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। વારંવાર અધિકારીઓને જાણ કરતા હતા, પરંતુ અધિકારી હજી રોગચાળો ફેલાય એની રાહ જોઈ રહ્યા છે। वो सब मच्छर पड़ रहे हैं, फिर ठंडी ताव, सब बीमार पड़े, बच्चे लोग, गंदगी है, सब बात आता है इधर। सब कचरे वाले आते हैं उधर, बराबर साफ करते नहीं है। बोलने जाओ तो वो लोग चले जाते हैं। बीमारी का सामना करना पड़ेगा अभी बहुत है, बहुत मुसीबत में है साहब हम लोग। बहुत बात आता है, हम सब बच्चे सब बीमार पड़ रहे हैं और कचरे कंपनी वाले भी इधर ही डालते हो। हम बहुत मुसीबत में साहब, या कुछ करो। હાલમાં ચોમાસાની ઋતુ અને વરસાદને ધ્યાનમાં લઈ ખાસ કરીને પાણીજન્ય અને વાહકજન્ય રોગોનું પ્રમાણ થવાની શક્યતા રહેલી છે। શહેરમાં હાલમાં આરોગ્ય વિભાગની તમામ ટીમ દ્વારા જ્યાં પણ પાણીનો ભરાવો જેવું થાય છે તે જગ્યાઓએ મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુના કેસ થવાની સંભાવના રહેલી છે। આરોગ્ય વિભાગના વીપીડીસી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા તમામ સર્વેલન્સ વર્કરો દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે કે કશે પણ પાણીનો ભરાવો ના થાય। ગત અઠવાડિયે શહેરમાં કુલ 1900 જેટલી જગ્યાઓએ મચ્છરોના બ્રીડિંગ મળી આવ્યા હતા, એનો નાશ પણ કરવામાં આવેલો હતો અને કુલ 518 જેટલી સંસ્થાઓને નોટિસ પણ આપવામાં આવેલી હતી। કુલ 1,53,000 જેટલો દંડ પણ ગત અઠવાડિયે વસૂલ કરવામાં આવેલો હતો। હાલ વરસાદનો માહોલ ચાલુ છે, આમાં રોગચાળો ફાટી નીકળે તો જવાબદાર કોણ? મહાનગરપાલિકાની બેદરકારીના કારણે પાંડેસરાના નાગસેન નગરમાં રોગચાળો ફાટી જવાની તૈયારીમાં હોવાના પુરાવા હાલ સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે। ત્યારે મહાનગરપાલિકા અધિકારીને આ નહીં દેખાતું હોય? હાલ સિવિલ અને સ્મીમેર અને હેલ્થ સેન્ટરોમાં અગણિત મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ટાઇફોઇડના રોગોના કેસો આવતા છતાં મહાનગરપાલિકા હેલ્થ વિભાગ જાગૃત નથી થઈ રહ્યું અને સફાઈમાં નંબર 1 બનવાની માટે મોટી મોટી વાતો કરતા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો આ બાબતે પણ ધ્યાન આપશે?
તો આપણે જોયું કે કઈ રીતે આરોગ્ય વિભાગની ટીમો હાલ અત્યારે કાર્યરત છે. કેટલાક વિસ્તારોની અંદર આરોગ્ય વિભાગની ટીમે આરોગ્ય ચકાસણી પણ કરી છે, દંડની કાર્યવાહી પણ કરી છે અને મચ્છરના બ્રીડિંગ દૂર કરવાની, નાશ કરવાની કામગીરી પણ કરી છે. પરંતુ હજી પણ ઘણી બધી જગ્યાઓ ઉપર જે વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થવાથી અને ગંદકી થવાથી મચ્છરોના બ્રીડિંગ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા છે અને જે કામગીરી છે એની સામે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. આપણી સાથે આરોગ્ય સમિતિના સભ્ય વિજય ચોમાલ જોડાઈ રહ્યા છે, જેઓ એસએમસી આરોગ્ય સમિતિના મેમ્બર પણ છે અને ઘણા લાંબા સમયથી લોકસેવા સાથે જોડાયેલા છે. આપણે એમની સાથે ચર્ચા કરીએ અને આ બધી જે સમસ્યાઓ છે એનું નિરાકરણ एसएमसी कई रीते लावशे ए विषय આપણે એમની પાસે જાણીએ. विजय चौमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज गुजरात में. और सबसे पहले आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आरोग्य समिति के मेंबर हैं आप और कई जगहों से फरियादें आ रही है कि वहां पर सफाई ठीक से नहीं हो रही है. जो आरोग्य विभाग का जो महकम है वो शायद इस समय जो समस्या है उसमें कम पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है. आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज चैनल के तमाम साथियों को खूब अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मीडिया इस विषय को लेकर जनता के अंदर जाती है और जनता के बीच में जनता के जो भी सवाल है वो हम तक पहुंचाने का काम करती है. मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं आपके चैनल को. रही बात समस्या की, सूरत महानगर पालिका पिछले काफी वर्षों से आप देख रहे हैं कि सफाई के मामले में या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से नॉलेज है. लेकिन सूरत महानगर पालिका जब भी बरसात आती है, बरसात आने के पहले आपको ज्ञात हो ऐसी पूर्व तैयारी होती है जो मानसून को लेकर, प्री मानसून को लेकर साथ में तैयारियां होती है, साथ में आरोग्य की बड़ी मीटिंग होती है. उसके अंदर हम पूरी प्लानिंग के साथ में, अधिकारियों के साथ में, हमारे चेयरमैन और मैं खुद वाइस चेयरमैन हूं सूरत महानगर पालिका में आरोग्य समिति का. उसके लिए हम तैयारी करते हैं कि पहले स्ट्रोम लाइन, जो स्ट्रोम लाइन से बरसात का पानी निकलता है उसकी पूर्णतया सफाई होती है. उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर हम लगाते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं. लेकिन जब भी बरसात आती है तो वो कवर निकाल लिया जाता है, वो स्ट्रोम लाइन को एकदम व्यवस्थित साफ करके ऊपर क्लीन कर देते हैं. उसके बाद में उसके बाजू में रोड के दोनों साइड में वाटर टेबल की सफाई होती है. वाटर टेबल की सफाई होती है ताकि उसमें कोई कचरा मिट्टी दबाव है तो वो रोड के ऊपर पानी तुरंत वो स्ट्रोम लाइन में चला जाता है. उसके बाद में आता है ओपन प्लॉट. ओपन प्लॉट में आप लोगों को मालूम है बरसात का पानी निकालने की सुविधा कम रहती है. उसके बावजूद भी सूरत महानगर पालिका के अधिकारी उसके अंदर ऐसी एक लाइन खींचते हैं गेट, मेन गेट के वाया, ताकि उसका पानी, रुका हुआ पानी वो स्ट्रोम लाइन तक आ जाता है. ये काम रहेगा. तीसरा काम और फ्लोर की जो टांकियां है, पानी की टांकियां है, उसके ऊपर एंटी लार्वल दवाइयां हम उसके अंदर छिड़काव करते हैं. उसमें मच्छर पैदा नहीं हो, मच्छर की दवाइयां एकदम उसके ऊपर छिड़काव हो जाता है. उसके बाद में सोसाइटियों के पानी का पूरा सोसाइटियों के अंदर जाती है हमारी टीम. जहां कहीं भी बरसात का पानी रुका होता है उसमें कीटनाशक दवाएं हम छिड़कते रहते हैं ताकि उसके अंदर कोई मच्छर पैदा नहीं हो. पानी पीने की टांकी का निरीक्षण करते हैं. जितनी भी सोसाइटियां है उसमें सब में हम पानी पीने की टांकियों का निरीक्षण, हमारी अधिकारी शनिवार को पूरी टीम निकलती है, जोन वाइज निकलती है. वो सारे अधिकारी जाके सर्वे करते हैं और कहीं भी इस प्रकार का न्यूसेंस हमको मिलता है तो उसको हम दंडित करते हैं और उनको ऊपर कार्रवाई करते हैं. उसके बाद में जगह जगह हम सैंपल लेते हैं पानी का. सैंपल लेकर के हम जो बेसु के अंदर लेबोरेटरी बनी है, पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, उसमें हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. यदि हमको इस प्रकार का पानी, पीने वाला पानी, यदि हमें थोड़ा बहुत भी गड़बड़ मिलती है तो हम उसको पानी को योग्य बनाने के लिए पूरी कार्रवाई करते हैं. यदि पानी की रिपोर्ट खराब आती है, कोई जाना, उल्टी, जैसे डायरिया, ऐसा कोई केस हमको मिलता है तो ORS का पैकेट हम डोर टू डोर हमारी टीम सूरत महानगर पालिका की आमंत्रण करना शुरू कर देती है. उसके बाद में वो टेबल वितरण, उसको टेबलेट, जिंक टेबलेट एक जो आती है वो भी हम डोर टू डोर वितरण करते हैं.
उसके बावजूद भी यदि हमारी पकड़ में नहीं आती है, कोई समस्या रहती है, तो हम हमारे 61 आरोग्य सेंटर है सूरत महानगर पालिका की हद में और 8 CSC हमारे सेंटर है जो 24 घंटा चलता रहता है, 24/7 वो सेवा देता है। उसके ऊपर हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है डॉक्टरों की। कोई भी इस प्रकार का केस आता है तो हम तुरंत कार्रवाई के लिए लग जाती है, हमारी टीम सब काम करती है। उसके बावजूद भी हम सफाई, पब्लिक टू पब्लिक, रोड टू रोड, एकदम सोसाइटी गली मोहल्ले में, आज आपने मेरी पोस्ट देखी होगी, मैं खुद जाकर मेरे विस्तार में या मेरे जितने भी सोसाइटी के विस्तार है, जितने भी हमारा सूरत महानगर पालिका क्षेत्र है, उसमें हम सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। उसके बाद में भी यदि कोई त्रुटियां रहती है तो मैं कोई नकारता नहीं हूं। बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल मैं टीवी चैनल को अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार का कोई केस यदि आता है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम हमारी टीम को तुरंत कार्रवाई के लिए, पांडेसरा हो चाहे ओल पार्ट हो चाहे परसपाटिया विस्तार हो, हम हमारी सुविधा, हमारी सेवा पूरा देने का वादा करते हैं। ये हमारी कमिटमेंट है कि हम एक इलेक्टेड पार्टी नहीं है, हम जनता जनार्दन की यही सूरत था। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसी गंदगियां रहती थी, जो हमारे पूरा महानगर पालिका जब हमारे अंडर में नहीं थी तो कितनी गंदगियां रहती थी। आज हमारा सूरत पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक नाम उभर के आया है। इसका कारण मैं मेरे तमाम अधिकारी, मेरी सत्ता पक्ष, मेरी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम सूरतवासियों को मैं दिल से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे को इस प्रकार की कोई जानकारी हो तो आप तुरंत मुहैया करवाएं। एक खाद्य पदार्थ जैसी हमारे विस्तार में वर्षा ऋतु आ गई तो हम गल्ला, लारी, रेस्टोरेंट, होटल, उसमें भी हमारी टीम काम कर रही है। कहीं भी आपको ऐसा लगे तो आप हमारे तक जानकारी पहुंचाइए, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, उसके रोकथाम के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आगे कोई आपका सुझाव हो तो आप हम तक पहुंचाइए। हम कोई, देखो जयेश भाई, ये कोई नकारने वाली बात नहीं है। बरसात का मौसम आता है, गंदगियां भी रहती है, लेकिन हम उसमें हम कोई नकारते नहीं है। उसमें हम हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारी पार्टी की एक थ्योरी है कि कहीं से भी कंप्लेन आती है तो उसको गंभीरता से ले और संबंधित अधिकारी तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। इस काम में हम कोई कोताही नहीं बरते हैं। मैं मीडिया के सभी मित्रों का खूब अभिनंदन करता हूं। जी विजय जी, ये आपकी बहुत ही पॉजिटिव सोच है और इसीलिए आज हमने आपको हमारे साथ इस चर्चा के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए जोड़ा है, ताकि कुछ चीजें जो हमारे भी नॉलेज में ना हो वो हमें जानकारी मिले, लोगों को भी जानकारी मिले, और जो समस्या अगर होने वाली है तो वो ना हो। हमने जैसे आपको बताया कि पांडेसरा नागशन नगर के साथ जो GIDC एरिया है वहां पर ये समस्या बहुत ज्यादा है। अगर किसी तरह से अगर वहां पर टीम कोई भेजी जा सके तो वो समस्या हल हो सकती है। साथ ही विजय जी, एक चीज और देखने को मिली है कि इस समय जो बीमारी की जो समस्या है, लोगों में जो मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियों का जो प्रमाण है वो आज बहुत बढ़ रहा है। सिविल अस्पताल, अपने SMC संचालित स्मीमेर अस्पताल सहित जो अपने हेल्थ सेंटर है वहां पर मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो इसके लिए आरोग्य विभाग की टीम वैसे तो कार्यरत है, मना नहीं कर सकते कि कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो फुर्ती से और जिस तरह से लोगों तक पहुंचना चाहिए आरोग्य सेवा वो नहीं पहुंच रही है। तो इसके लिए भी आप किस प्रकार से उपाय करेंगे वो भी हम जानना चाहेंगे। जयेश भाई, एक तो मैंने फर्स्ट में आपको बताया कि हमारी टीम पानी का जांच करके वो तुरंत हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे में यदि हमें ये महसूस हो रहा है, मालूम हो रहा है कि इस पानी पीने योग्य नहीं है, तो हम डोर टू डोर दवाइयां शुरू कर रखी है, हमारी टीम काम कर रही है इसके अंदर। उसमें यदि हमें ऐसे केस मिलते हैं कि कहीं उल्टी, जाड़ा, कोई ऐसी बुखार, ताव, मलेरिया, ऐसी कोई हमें संकेत मिलते हैं तो हमें उस विस्तार में हमारे जितने भी आरोग्य सेंटर हैं, हमारे जैसे सूरत में 61 आरोग्य सेंटर है, वो सब में हमने हमारी टीम को पहले से तैयारी कर रखी है
कोई आते हैं, हाँ बढ़े हैं केस, मैं इसके लिए नकारता नहीं हूँ, 100% बढ़े हैं, मतलब थोड़ी मात्रा में बढ़े हैं, लेकिन उसका उपचार चालू है। कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं है, पूरी हमारे कंट्रोल में है। और कोई भी इस प्रकार के, जैसे आपने पांडेसरा का जिक्र किया, आपने और भी एक सोसाइटी का इसमें दिखाया, मैंने नोट कर लिया है, कल तक हमारे अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे। आप उसको फोन नंबर तक आप हमें दे सकते हो, मैं मेरी टीम को वहां भिजवाऊंगा। हम पूरा इसके अंदर एक्टिव है, कोई देखने की जरूरत नहीं। रही बात चिकित्सा दवाई की, हमारे आरोग्य सेंटर, CSC सेंटर पूर्ण त्याग जिम साथ में खड़ी है, पूरी टीम हमारे साथ में 24 घंटा सुविधा देने वाले हमने 8 सेंटर CSC के बनाए हैं पूरे सूरत शहर में, जो अभी ताजा उद्घाटन किया है, इसी साल में हमने उद्घाटन किया है, वो भी हमारी सेवा दे रही है। उसके बाद में भी यदि कोई हमें उसके अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमारे सिम्मेर हॉस्पिटल सूरत महानगर पालिका का, उस हॉस्पिटल में आपने देखा होगा पिछले 14 साल से मैं कंटिन्यू 2 घंटा 1 घंटा मैं नहीं रहता हूं तो मेरी टीम वहां काम करती है। ये हम हॉस्पिटल की सेवा कंटिन्यू करते हैं। हमारा वो हॉस्पिटल भी जनता जनार्दन के जनता हित में सेवा करने के लिए तैयार खड़ा है। लोग पहले बोलते थे कि ये तो दोहला आती है, लेकिन आज सूरत शहर में आरोग्य संबंधित सेवाएं, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में गायनिक की समस्या हो, कोई ऑर्थोपेडिक की समस्या हो, चाहे कोई टीबी की समस्या हो, सिम्मेर हॉस्पिटल नंबर 1 पर है। आप जाके वहां सेवा देख सकते हो। पर डे की 3000 से ऊपर OPD हमारे वहां जनता जनार्दन सेवा ले रही है, ये आपके सामने है। और आपको कोई त्रुटि हो जयेश भाई, मैं आपको एकदम विनम्रता से, मेरी पार्टी का ऐसा आदेश है, हमारे मेयर श्री का, हमारे आरोग्य समिति चेयरमैन का और हमारी पार्टी का इस काम में पहले से सफाई अभियान, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी जो सफाई को लेकर, आज आप देखे होंगे कि सफाई का काम और प्रधानमंत्री जी है, लेकिन आज हमारे PMO ऑफिस में भी सफाई की चर्चा हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां आप लोगों ने देखा होगा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट कितने सुंदर लग रहे हैं। वो हम सबके लिए जरूरी है। आज सोसाइटियां के जितने भी अध्यक्ष हैं पूरे शहर में, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, वो शहर में सफाई अभियान को लेकर इतना उत्साहित हैं, पूरे देश में सूरत को नाम रोशन हुआ है। तो हम आपके इस सेवा के लिए पूरी सूरत महानगर पालिका अधिकारियों के साथ में, पूरी टीम के साथ में, आपके साथ में है। मैं आपका नाम पांडेसरा का जो विषय है वो मैंने नोट कर लिया है, कल तक आप रिपोर्टिंग कर लेना, मेरी टीम आपको वहां काम करती हुई मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल चौमाल जी, इसमें दो राय नहीं है कि आप के रहते ये जो भी चीज आपके नॉलेज में आएगी तो आप तुरंत उस पर कार्रवाई करवाओगे। ये हम बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपको, कई साल से आप इस सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं और हमने भी देखा है। इसलिए आपकी कार्य प्रणाली पर किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा रहे हैं। बस यही कारण था कि आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े आपके साथ, और आपके नॉलेज में कोई चीजें जो आपके नॉलेज में नहीं है वो आ जाए। यही कारण था कि आपको हम हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं। चौमाल जी, सबसे बड़ी बात कि जो कार्य SMC द्वारा किया जा रहा है वो वाकई ही सराहनीय है, इसमें हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि हर जो पॉकेट एरिया है, जिसको हम कहते हैं कि जो झोपड़पट्टी जैसे जो स्लम एरिया है, वहां तक पहुंचकर आरोग्य की टीम कार्यवाही कर रही है। लेकिन जो मैं चीजें जो आपको बताने जा रहा हूं वो अलग चीज है अभी, कि जिस तरह से आप बोल रहे हो कि प्री मॉनसून कामगिरी से लेकर के आपने पूरा ब्यौरा दिया है, लेकिन फिर भी ये पानी का जमावड़ा जो जगह जगह हो जाता है, जब भी बारिश होती है तो हर जगह पानी भर जाना और इस तरह की जो समस्याएं होती है, ट्रैफिक के बाधा उत्पन्न होती है। उसके अलावा जो आप बोल रहे हो कि स्ट्रॉम ड्रेनेज की सफाई अगर कर ली गई है तो फिर पानी का निकाल क्यों नहीं हो पाता है? जब भारी बारिश होती है तो ये जगह जगह पानी भर जाता है। उसके लिए क्या इलाज सोच रखा है? क्यों आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की गुंजाइश हवामान विभाग ने जताई है, तो उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालेंगे आप? जयेश भाई, कामगिरी
और प्लानिंग पूरे अधिकारी, पूरी हमारी सूरत महानगर पालिका की टीम प्लस हमारी पार्टी की टीम, उसके ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत खुले दिल से बात कर रहा हूं आपसे, कोई भी हम काम पब्लिक के बीच में जाते हैं, लेकिन 100% हम ये नहीं कर सकते कि हमने कर दिया। अभी आपको कहीं भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आएगी। क्यों? कि हम सब कुछ 100% काम करने पर भी उसके अंदर कुछ त्रुटियां हमारी से रह जाती है अथवा अधिकारी से रह जाती है। आज हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वहां गंदगी नहीं पड़ी है जी चलो, और वहां गंदगी पड़ी है तो वो ऐसा नहीं कि वो अधिकारी की कमी रह गई। हो सकता है हमारे उस विस्तार में पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है, उसका भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। पब्लिक के अंदर वहां अवेयरनेस लेने की जिम्मेदारी भी हमारी है, सत्ता पक्ष की है, सूरत महानगर पालिका की है। मैं बहुत पॉजिटिव बात कर रहा हूं आपको। उसके बाद में भी कोई त्रुटियां काम में रह जाती है। देखो अंदर गटर के अंदर वो लाइनें, स्ट्रॉम लाइनें, उसको हम मशीन के द्वारा, मैनुअल तो आजकल सफा होता नहीं है, हम मशीनों के द्वारा करवाते हैं। मशीनों में कोई कचाश रह जाती है, उसमें 100% कोई रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन ये मीडिया को मैं 100% मानता हूं, जो ये गलियों में पब्लिक जनता जनार्दन के बीच में जाती है और वो वहां से रिपोर्टिंग करती है, रिपोर्टिंग करके वो आप न्यूज चैनल तक हमारे तक पहुंचाते हो, ये सब एक सहयोग का काम है। ये हम एक मीडिया है, पब्लिक है, पॉलिटिशियन है, महानगर पालिका है, गुजरात सरकार है, केंद्र सरकार है, ये सब हमारा मौलिक जिम्मेदारी है। हमारा एक राइट्स है, पब्लिक का भी राइट्स है। हम सब मिलकर के सेवा करेंगे, मिलकर के इस काम को अंजाम देंगे तो हमारे शहर को हम बीमारी से भी मुक्त करेंगे, हमारे शहर को हम सफाई भी रखेंगे। ये हमारी सबकी मौलिक जिम्मेदारी है। और कहीं भी आपको त्रुटि लगे, मैंने आपको फर्स्ट में भी जयेश भाई कहा था कि आपको ऐसा लगे तो आप हमारे तक पहुंचाने का काम करें। मैं, मेरी टीम, आपने एक पांडेसरा का जिक्र किया, मैं कल तक आपको वहां फोटो आपको वो व्हाट्सएप कर रहा हूं, वीडियो बनाकर आप तक मैं भिजवाने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर भी आपको कोई ऐसा लगे तो आप वो हमारी टीम को भी साथ में बुला लो, मीडिया को भी बुला लो। मैं खुद चल के, और मेरे चेयरमैन श्री आएंगे, मेरा मेयर आएंगे, मेरी पार्टी का अध्यक्ष खुद इस काम में हमारे से रिपोर्टिंग ले रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तो आपने देखा होगा, पिछले 1 महीना पहले स्वयं रोड के ऊपर सफाई करने निकल गए। ये क्या है जी? ये उनकी एक, हम लोगों को एक शिक्षा देने की जरूरत थी, बताने का उनका एक आदेश था कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष सफाई काम में उतर जाते हैं, हमारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस काम में लगते हैं, तो हमारे जिला अध्यक्ष भी इसमें लगेंगे, हमारे शहर अध्यक्ष भी लगेंगे, हमारे वार्ड अध्यक्ष भी लगेंगे, ये तो हमारी कार्यकारिणी की टीम लगेगी। फिर छुट्टी हुई 5 प्रदेश अध्यक्ष के साथ में मिनिस्टर लोग भी थे, हमारे मेयर भी थे, मेयर, हमारे सूरत महानगर पालिका के तमाम सीनियर जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, शासक पक्ष का नेता, सब हम लोग इसके अंदर काम में लगे हुए हैं। और आप भी इसमें आप हमारी मदद कीजिए। मैं वापस आपको पुनः दिल से सपोर्ट करता हूं, दिल से अप्रिशिएट करता हूं कि आप हमारे तक ये जानकारी पहुंचा रहे हो। मैं इंडिया न्यूज को हृदय से अभिनंदन, इस तरीके का कार्यक्रम वो कर रही है पब्लिक के बीच। जी जी विजय जी, बहुत बहुत आपके साथ बात करके इस तरह से लग रहा है कि समस्याओं का जल्द निवारण भी ले आएंगे आप, और जिस तरह से पॉजिटिवली आप चीजों को बता रहे हैं तो हमें आशा है कि आने वाले समय में समस्याएं कम होगी और आप पूरी कोशिश में लगे हैं कि ये जो भी जहां भी कहीं त्रुटि रह गई है वो दुरुस्त हो जाए। आपका बहुत बहुत आभार विजय भाई चौमाल जी, जो कि हमारे साथ आप जुड़े और इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने में आपने हमारी सहायता की। तो આ હતા એસએમસીના આરોગ્ય સમિતિના સભ્ય વિજયભાઈ ચૌમાલ, જેની સાથે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, અને એમનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે મશીનોથી હાલ અત્યારે ડ્રેનેજ વગેરેની સફાઈ થાય છે, સાથે જ એમની આરોગ્યની ટીમ સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે, પરંતુ ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ સરજ ચૂક થઈ હોય કે કોઈક જગ્યાએ જો ત્રુટિ રહી ગઈ હોય તો એ સુધારી લેવામાં આવશે અને તુરંત જાણકારી મળતાની સાથે તરત જ એક્શન લઈ જ્યાં પણ ગંદકી કે મચ્છરોનું બ્રીડિંગ દેખાશે અથવા તો કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ સમસ્યા હશે તો એને તરત જ દુરુસ્ત કરી લેવામાં આવશે અને તેઓ આ બાબતે પૂરેપૂરા કોન્ફિડન્ટ છે।
તો આજના આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ. આવતીકાલે નવા વિષય સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. નમસ્કાર.